Yeah, hello everyone. Am I audible? Yes. Okay. Let me share my screen then. So today, like we are going to discuss basics of C++, and if we have time, we will also discuss some STL concepts. Okay, first all of you guys are comfortable in Hindi or do you want in English only? सर हिंदी ठीक रहेगा सर. हिंदी Okay, if everyone is comfortable, then I can teach in Hindi only. If anyone does not have any issue with Hindi. So you can write in the chat. Hindi, okay. So I guess around 10 12 people are there. So like every one of you have like done some coding C++ before, or you are like complete beginner, you can write in chat or can. Okay, Rohit done before. Like, is any one of you is a complete beginner who has never written a single line of code or something like that? Okay, done before. Like those who are complete beginner can say like, I will start from the basics only. If, like, yeah. Okay, so everyone has done some coding in C++. So I guess then we can wrap up the basics fast, if you all guys know. Cool then. So have you used some online judges before also? Like have you used Code Forces, Code Chef, at Coder? Okay. So you guys have some experience of, okay, Ritik, you don't have used, okay. Okay, fine. Okay, let me share my screen first. Is my screen visible? yes. Yes. Oh, okay, fine. So first I will give you a brief introduction to OJ's online judges. So these are few online judges that I have mentioned here. There are many more, but these are like most popular in competitive programming. So first one is Code Forces. It is a Russian online judge. So I will show you. So this is Code Forces. First you need to create an account here. If you have not created before, just create an account with your email ID and some name. And like these online judges conducts contests, like every week they conduct 2-3 contests here, and you can see the previous contest also here. And if you want to practice on these online judges, there is a problem set, this book tab. You can go here and you can solve any problem, and you can like filter problems also according to difficulty. So like if you are a beginner, you can write 800 to 1000 and you can apply difficulty. So the problems will be like sorted according to these difficulty level, which you will set here. So and for contest you can register here and do the contest. And let like, and to submit, like if it is a problem, and to you read the problem
from here. So this problem is something, and they will tell you some input. So this input is each test contain multiple. So what happens in these files, generally they give you multiple test cases. Like they will not test your code on a single test case, they will give you multiple test cases, and they will give like each test case will contain some input n, and for output they will say you what you have to do. So they are saying like you have to print m integers, either 1 or 2, and you have to print the size of the total number of spells you use. So when you will solve the problem how to submit, so there is a submit button here, and you can, like I already I guess done this code, yeah. So you can copy your code from here, and if you are coding in C++, then you need to select the GNU G++17 compiler and paste your code here and then just submit. Okay, you have submitted that. I have already submitted the code before, so that's why this is giving me warning. But you got the idea, right? How to work on Codeforces or how to read them. I have used a bit, but please do give the info. Okay. So do you got the idea of this Codeforces, how to search on the problem? I have a question. Actually, if it fails that I have failed to fulfill one of the test case, so how to find out that which test case is not passed? First of all, I would like to say you need to like create your own test cases. Like don't see the test cases on which you are failing. You just create your own test cases on and dry run your code on which it can like dry run your code, like what is what the output your code is giving and what is the expected output. Like this is the best way to actually improve in debugging also. If someone will directly give you a test case on which your code is failing, then like you will not learn how to debug your code. So this is the most important part in CP. Like don't just rush to see which test case you are failing. Try some test cases on your own. Do some brute force to find out and just see what the output you are getting by debugging and what is the expected output for that code. Okay. Yeah. So everyone got the idea of Codeforces, right? Now similarly we have CodeChef. So you can create an account here also. You can log in with your Google, or you can create your. So here also there are compete section. So they conduct contests on start, like on Wednesday they conduct at 8 p.m. You can give the starters. They are very good for beginners, I guess. Yeah. And you can also practice here in the practice problem set, and here also you can set the ratings and sort by the submissions or stuff, and you can solve the problems here also. Like here also it is very simple how to submit. So you read the program, you read the input, and you need to output the file. So this is a simple program. I can even tell you how to work with this. So in this, they are giving no test cases. So we have to take an input. So input is an integer. I will take int n. And then to take input, we use C in n. And what he is asking? He is asking to just print out this number. C out and endl. And you can just like copy paste your code and this is submit, and you can submit. सर ये जो आपने ये साइंड मेन इन सब का भी मतलब बताओगे? Like I think there is no need to go into details of what they are doing. If
like this is just a main function in which you write your program, right? Like there is no need to go into depths of this till now. Like you will learn it around the like well you will code more and learn more things. Like for beginner I would not recommend to learn the meaning of each and everything. You just use it first, and like on the way you will see and remember, like you will get the use of it, what you need to do. Does it sound good? So you see, like does this, the code chef is also clear, like how to practice, how to compete, how to submit code, right? Code chef, code forces I have done. Okay. One more is AtCoder. Has anyone heard before about AtCoder? Yes, Bhaiya, yes. Yes, yes, ma'am. How to open the side window? Okay, you can watch some videos of that, how to set up some VS Code or Sublime if you are using. You can see any YouTube video, like they will tell you how to like set up your IDE for CP, competitive programming. Like there are many videos, I guess. Okay, AtCoder. So AtCoder is basically a Japanese competitive programming website. So they also conduct AtCoder beginner contests like this, and they conduct mostly on Saturdays at 5:30. Like yeah, this was on Sunday, but they mostly conducted Saturdays at 5:30 p.m. in evening. And yeah, these are the tasks. Like first two or three tasks are really simple. You can like solve them if you know the basic concepts also. And here you can set up this, use language C++, and here also submit code and just press the submit button. Yeah, this is all. Like, and like on the way you can explore more stuff also, right? Like I am giving you the basic idea how to use, how to log. You need to create an account and just how to submit the code and which compiler you need to use. So I am giving you the basic idea. You can explore more on your own, right? Like yeah, when you will create an account you can explore more things on your own. So this is just the basic introduction I gave. So everyone is clear with these OJs, right? How to create account, or how to submit problems, or how to भैया practice. वॉइस लैग कर रही है शायद आपकी. ओके, अभी आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है बात. ओके, अगर कुछ दिक्कत हो ऐसे बता देना बीच में, ठीक? So this is one more site, CSCS problem set. So this is static OJ. This means like they only have some standard problems. They do not conduct contests. They have basic standard problems that you need to know for solving like more complex problems, because so they do not conduct any contest. They just have some standard problems. I will show you that. So this is a CSCS problem set. So these first have introductory problems, and like they have topic wise problems and you can solve them. Yeah. So they do not conduct any contest. They have only like problems, but they are very good problems. Like you will learn like many standard techniques if you solve these problems, like that are required in competitive programming. Like they are very standard problems. If you solve them, you will learn those techniques and use those techniques in other OJs or contests. So yeah, I would definitely recommend this CSCS to learn standard techniques. So this was about CSCS. So what is a sample test case? Oh, I have also, okay, what was code forces? So if we take a problem, so yeah, so I have already explained. So in various code, they will give you multiple test cases.
each test case will contain several like input, like first line will contain a single, the number of test cases they have. First line will contain an integer n. See, they have this 7 is number of test cases. First is 3, like this is, they are giving n, the length of given sequence. The second line of each test case contain n integer. So 3, 2, 1. So they are giving you an array of integers of size 3. So you will read that. So this that they have given, this is a sample test case, and this is their output. They are what they are expecting from this. So from this you can frame your logic, like how from this test case they are outputting no. Like you can frame your logic from sample test case. But when you submit your code, your code will be checked against multiple test cases, right? Not only on this. This is the sample test case that they gave you, like what result they are expecting. But you need to write your code in such a way so that it gets accepted on all the various hidden test cases that are there in. When you submit the file, there are various hidden test cases that your code, they will run against those test cases and check. Only then they will give you an accepted verdict. If your code passes all the test cases that they have in their file, then only you will get accepted verdict here. Otherwise you can get some error, like error can be WA means wrong answer. Like wrong answer can be you printed no, but they were expecting yes to be printed. Or what you can get TLE. So you will have a basic class on time complexity, I guess in the next one. You will get idea of why your code TLE. So TLE is time limit exceeded. So this means, see, this is time limit per test, they given 1 second. So your code should pass all the test cases. Like your code should run within 1 second on all the test cases that they are giving you. So this time limit concept you will get after you will learn. Or do you guys have idea of time complexity? You can write, sir, Hindi, please. Oh, okay. So yeah, this one is TLE verdict, or you can also get runtime error. So runtime error is जब like अगर आप लोगों ने कोई एरे या वेक्टर ले रखा है और अगर आप उसके बाहर की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, लाइक इफ यू क्रिएटेड लाइक अगर आपने वेक्टर बनाया है साइज n का, लाइक वेक्टर इंट v ऑफ n, राइट? तो इससे क्या होगा कि एक साइज बन जाएगा वेक्टर n साइज का। पर अगर आप कहीं पे कोड में v ऑफ n+1 एक्सेस कर रहे हैं, so this kind of behavior will give you runtime error or segmentation fault. So you will get an error when you will submit your code na, so you will get an error like runtime error or segmentation fault, because you are accessing the memory which is not in your control. Like you have only created this much space, but आप n से ज्यादा स्पेस की मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, like v of n+1, और here only v of n will all, like यहाँ पे अगर v of n भी आपको रन टाइम एरर दे देगा, क्योंकि बिकॉज वेक्टर स्टार्ट लाइक दीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। सो अगर आप लोगों ने n साइज का एरे बनाया है, तो आपका जो है लाइक 3 साइज का एरे बनाया है, तो आपका इंडेक्सिंग 0 से चालू होगा, 0 1 2। तो अगर आप v of 3 भी एक्सेस करोगे ना, तो वो भी आपको रन टाइम एरर देगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, because indexing starts from 0 not from 1. So last indexing will be n-1 if you create, अगर आप लोगों ने n साइज का वेक्टर बनाया है, तो लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी n-1. So you even can't access v of 3. So ये रन टाइम एरर का आइडिया लगा क्यों आता है ये तीनों एरर, like you can get these results if you submit. Okay, so yeah, introduction to OJ is more or less this, और बाकी आप लोग खुद explore कर सकते हो if you like. When you will solve problems, you will explore more on your own.
Now we will EC move. क्या बोला भैया? EC किस लिए? AC means accepted. Yeah. ओके ओके Yeah. भैया एक बार रन टाइम को थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दीजिए ना एक बार। ओके ओके, सो रन टाइम बताता हूँ फिर से। सो अगर लाइक आपने कोई वेक्टर बनाया है n साइज का, राइट, तो इंडेक्सिंग जो होता है हमारा वेक्टर या एरेज का, मोस्टली मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स। सो इफ यू हैव लाइक अगर आपने n साइज का बनाया है एरे, तो लास्ट इंडेक्स विल बी n-1, राइट, because the total size of the array is n. So how many elements are there in 0 to n-1, last index minus 0 plus 1, right? So this will give you size of the vector n. So this is last index, this is first index, and this is like plus 1 because number of elements between L to R is R minus L plus 1, right? तो अगर आप लोगों ने n साइज का एरे बनाया है और इंडेक्सिंग 0 से चालू हो रही है, तो लास्ट वाले का इंडेक्स n-1 रहेगा। पर अगर आप लोग कहीं पे अपने कोड में लाइक आप लोग लूप चला रहे हो i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n, तो ये रन टाइम एरर दे देगा, क्योंकि n तो आपके मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने लाइक आपका लास्ट इंडेक्सिंग ही n-1 है अगर आपने n साइज का एरे बना रखा है या वेक्टर। समझ आया? तो आप लोगों को i लेस देन n तक जाना पड़ेगा, या i लेस देन इक्वल n-1, या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है। अब समझ आया ये जिसने डाउट पूछा था? हाँ भैया। ठीक, so runtime error is also clear. Now I should move to C++ basics. So first I will tell you how to take input और output कैसे लेते हैं C++ में, and like we are not going to teach so much theory, we will see problems on every concept that I will teach, like how to do this, how to do this. I will take some problems and explain you via that problem. Like, is it fine, or should I teach more and more theory, and then like what would you guys like? No, it What? Only problems, yeah. I guess with problems you can learn more. Otherwise, it will be boring for you also to listen to so much theory. So we will take some problem based on the concept, and I will teach you that concept through that problem. Yeah. भैया थोड़ा सा ऐसे बताइए कि STL की कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम में यूज कैसे करें? हाँ, वो भी yeah, like we have STL also, right? We have STL with problems. Like we do not have so much theory. We have problems with every STLC. I will like cover every topic with problems only. Is that fine? ओके भैया। भैया थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा उसके बाद से। हाँ, बेसिक मैं बता रहा हूँ, लाइक शुरू से चालू करते हैं इनपुट आउटपुट से। सो फर्स्ट वी विल सी दिस। लैंग्वेज की दिक्कत, मतलब क्या? जावा और लैंग्वेज जावा और C++ में दिक्कत नहीं आएगी? लाइक तुम जावा में करते हो क्या? हाँ सर। भाई लाइक जावा का, हाँ सर मैं जावा का मेरे को भाई आइडिया नहीं है। लाइक मेरी पहली लैंग्वेज जो मैं सीखा वो C++ ही थी, तो मैं उससे मेरे को जावा का आइडिया नहीं है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि C++ में ही करो, क्योंकि क्या है ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में लाइक सब C++ में करते हैं, तो लाइक तुम लोग दूसरों का कोड रीड करना, समझना, लाइक अगर कहीं फंस गए डाउट तो उसमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि सब लोग C++ यूज करते हैं। Is it fine? Okay, so the first problem is like how to take input and output. First program is say hello with C++. So what they are giving, they will give you a name S, and you have to print hello, this comma, name without parenthesis.
only, so input is only one line containing a string s, and we have to print hello without quotes and then print name. So is the question clear to everyone what we have to do? They will give you a string, C programmer, and हम लोगों को प्रिंट करना है हेलो कोमा स्पेस और जो स्ट्रिंग उन लोगों ने दिया है वो प्रिंट करना है। समझ आया करना क्या है कोड में? हाँ तो अब मैं तुमको बताता हूँ इसमें कैसे इनपुट आउटपुट लेना है। सो पहले इनपुट लेना है, सो दिस इज अ स्ट्रिंग राइट, प्रोग्रामर इज अ स्ट्रिंग। तो हम लोग पहले इनपुट लेंगे एक स्ट्रिंग s, we will define like this is initialization, we will initialize our s with a string। और इनपुट लेने के लिए C++ में we use a keyword cin, cin these two angular brackets inside cin s, this means we have taken our input of this programmer in the s string। तो अब हम लोगों के s स्ट्रिंग में ये इनपुट आ चुका है, जो ये कोड हम लोगों को दे रहा था इनपुट, अब हमारी स्ट्रिंग में s है। अगर वो आपको देखना है कि s में अभी क्या है, cout s करके आप देख सकते हो, cout s handle, handle means it will move to a new line। so see what I received programmer, because हम लोगों ने s में इनपुट लिया था प्रोग्रामर, तो अगर उसको cout करेंगे, cout means outputting printing, so with cin we take input, with cout we get output। cin inside brackets 2 times s, this will take input, and cout outside brackets like this angular brackets, and you write thus that we need to output s and you will get an output। but here we don't need to like, हम लोगों को सिर्फ प्रोग्रामर आउटपुट नहीं करना है, हम लोगों को प्रोग्रामर से पहले hello, so we will use double these strings and we will write hello inside it, hello comma and space, because we need hello comma and space, and we will print s after it, right, hello comma space and s after it, then we will get this expected output। ये समझ आया ये क्यों लिखा मैं? हाँ समझ में आ गया। सबको समझ आ गया ना ये? हाँ भैया आ गया। एक चीज बताइएगा, ये बाएं तरफ का जो ये आपका ये अलग से जो आइकॉन लेकर आए हैं वो कैसे लेकर आए हैं? ये हम लोग तो VS कोडिंग जब करते हैं ना तो ऐसा नहीं आता। तो मैं उसी के लिए बताया था, अपना तुम आईडी सेटअप कर सकते हो, मैं भी ये यूट्यूब वीडियो देख के किया था लाइक। अच्छा मतलब वो जो देख रहा था उसका ही एक्सपेक्टेड चीज दिखाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट। हाँ हाँ, लाइक वो टेस्ट केसेस यहाँ पे लाके कॉपी कर देता है जो वहां पे रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया, हाउ टू टेक इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझ आया कैसे लेना है? हाँ भैया। तो अब हम लोग मूव करते हैं डेटा टाइप पे। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स दैट वी यूज इन C++? तो पहला डेटा टाइप है इंट। सो ये क्या करेगा, एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम लोग इंट कीवर्ड यूज करेंगे। इंटीजर मींस ओनली अप टू 32 बिट इंटीजर, लाइक ये अप्रोक्सीमेट होता है लाइक 10⁹ तक अगर कुछ है वैल्यू तो हम लोग उसको इंट में स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे जब हमारी वैल्यूज होंगी 10⁻18 तक, लाइक अगर आपको 10⁹ से बड़ी वैल्यूज है और 10⁻18 से कम है तो हम लोग लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे। और कैर विल टेक एट ओनली अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, लाइक कैर C can be equal to B, so B is a character like A to Z or capital A to Z, or character can also be like 1 to 9 or 0। so हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर दे पाएंगे, लाइक कैरेक्टर में ओनली वन थिंग। और फ्लोट है अगर आपको रियल वैल्यूज लाइक डेसिमल में देनी है,
लाइक अगर आपको स्टोर करना है 2.34, तो ना तो ये इंटीजर है बट ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है। तो ये डेसिमल वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लोट। और डबल इज ऑल्सो सिमिलर टू फ्लोट, लाइक इंट में क्या है 32 बिट तक इंटीजर आते हैं और लॉन्ग लॉन्ग में 64 तक। ऐसे ही फ्लोट में अगर छोटी वैल्यूज हैं तो फ्लोट यूज करेंगे, और डबल यूज करेंगे अगर हमारी बहुत ज्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यूज हैं। सो इंट और लॉन्ग लॉन्ग में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है फ्लोट और डबल में। बस ये क्या है, रियल वैल्यूज के लिए यूज होता है फ्लोट और डबल। तो ये चारों पांचों कीवर्ड समझ में आए, किसके लिए क्या यूज करना है। लॉन्ग हाँ लॉन्ग भैया। और लॉन्ग और डबल के लिए डिफरेंस बताइए एक बार। सो लॉन्ग लॉन्ग विल स्टोर ओनली इंटीजर, ओके। लाइक इट कांट स्टोर 2.34। अगर आप इसको लॉन्ग लॉन्ग को दोगे ना, लाइक आई विल शो यू 1 second। से अगर आप लिखते हो लॉन्ग लॉन्ग a इक्वल टू 2.374, राइट, और अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो ये आपको सिर्फ इंटीजर, उसको बाकी पार्ट को वो हटा देता है जो डेसिमल हो, और सिर्फ इंटीजर पार्ट को रख लेता है। तो आप देखोगे कि वो सिर्फ a देगा, लाइक 2 देगा। अच्छा, अगर डबल यूज करता हूँ तो अगर यहाँ पे डेसिमल का अगर बादमा भी देगा। अगर ये आपको डबल यूज करते तो ये पूरा देगा, क्योंकि वो रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम डबल यूज करते हैं। 2.3374 मतलब लॉन्ग लॉन्ग एक टाइप का इंटीजर ही हो गया। इंटीजर ये, बट फॉर लार्जर वैल्यूज, लाइक वो 64 बिट्स तक स्टोर करता है और इंट करता है 32 बिट। सो लाइक 32 बिट तो आप लोग 2^31 तक की वैल्यूज इंट में स्टोर कर सकते हो, और ये -231 से यहाँ तक, और लॉन्ग लॉन्ग में से -264 से लेके 63 -1। तो इतनी बड़ी वैल्यूज आप लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, और इंट में ये वैल्यूज। तो मोस्टली क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग 10⁻⁴ में देता है, तो ज्यादातर ध्यान रखते हैं कि 10⁻⁹ तक वैल्यूज हम इंट में स्टोर कर लेंगे, और अगर बड़ी है 10⁻18 के आसपास है तो हम लॉन्ग लॉन्ग में। ये समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बता दो। हाँ भैया आ गया। तो ये वाला सॉल्व करना है या ये सॉल्व करके दिखाऊं या कर लोगे अब? हो जाएगा। अगर सब हो लोग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो ये 3 है, ये छोटा वैल्यूज है तो इसको इंट में ले लेंगे। ये इतना बड़ा वैल्यूज है तो ये लॉन्ग लॉन्ग में ले लेंगे। ये ए कैरेक्टर है तो इसको कैर में इनपुट ले लेंगे। ये डेसिमल है, फ्लोट में ले लेंगे क्योंकि कम वैल्यूज हैं, डेसिमल के बाद 2 ही है, और ये डबल में ले लेंगे, राइट। सो इंट, लॉन्ग लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, पांचों क्लियर है ना? हाँ। ओके। हाँ भैया। और बेसिक डेटा टाइप्स ये है, एक बूल और होता है बूलियन। सो बूलियन होता है, इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स। लाइक अगर आप बूल को ए को डिफाइन करोगे ट्रू, लाइक आई विल से यू हाउ बूल वर्क्स। वन मोर डेटा बाय बूल ए। सो दिस इज लाइक, ये मोस्टली यूज होता है ट्रू या फॉल्स करने में। लाइक हम लोग फ्लैग सेट करते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो इसको ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। तो ये हम लोग कोडिंग में, लॉजिक में यूज करते हैं। तो अगर आप सी आउट ए करोगे तो ये 1 देगा, 1 मीन्स ट्रू। तो ये बूलियन जो है ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स जो है अगर बूल b इक्वल टू फॉल्स, तो अगर आप b को प्रिंट करोगे तो ये 0 देगा। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। सो सी 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। तो आप इसको 2 ही कीवर्ड दे सकते हो, ट्रू और फॉल्स।
दिस इज अ boolean keyword. So this is like we generally use in conditions. ये Like- रिटर्न करने के टाइम यूज कर सकते हैं बुल को, मतलब हाँ हाँ, जैसे अगर आपको कोई फ्लैग, मान लो आपने ऊपर कुछ बूल फ्लैग सेट किया कि बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, और आपने कोई लॉजिक लिखा इफ में, इफ समथिंग आपने कुछ लॉजिक लिखा और यहाँ पे फ्लैग को ट्रू कर दिया, और जब क्या किया और बाद में आपको मान लो यस नो प्रिंट करना है, तो अगर यस तब प्रिंट करना है अगर फ्लैग ट्रू है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इफ फ्लैग इक्वल ट्रू, तो प्रिंट करो सी आउट यस, राइट। और एल्स अगर फ्लैग तुम्हारा ट्रू नहीं हुआ तो सी आउट कर दो नो। समझ आया ये बूल का कैसे मोस्टली यूज करते हैं? मतलब ये बुल से ट्रू फॉल्स और येस नो प्रिंट करते हैं एक्चुअली कंडीशन के लिए। या अगर मोस्टली बूल को हम सेट करते हैं कुछ फ्लैग की ये है, और अगर हमारा बीच में कुछ कंडीशन के हिसाब से हमको वो ट्रू करना है, तो अगर वो ट्रू हो गया, तो अगर हमारा कंडीशन तक ही अगर लास्ट में जब वो अगर ट्रू हमको मिल जाए तो हम यस प्रिंट कर देंगे, एल्स नो। ओके भैया ये जो डबल इक्वल, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंसेस बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट उसी पे आने वाले हैं हम लोग, सी लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये डायनेमिक के बारे में कुछ बता सकते हैं? डायनेमिक के बारे में क्या डायनामिक? भैया एक डायनेमिक जैसे इंटीजर डबल ये सब होता है, तो उसी तरह का एक डायनेमिक भी होता है ना, जो अरे हम लोग। वो एरे और वेक्टर में होता है डायनामिक मेमोरी। मैं जब उस पे आऊंगा बताऊंगा। अच्छा, लाइक एरे स्टैटिक है और वेक्टर डायनेमिक है, वो बताता हूँ। ओके ओके। तो अभी हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जो यूज होते हैं, तो इसका सवाल ही ले लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स और इफ एल्स का कंबाइंड शायद ये प्रॉब्लम है, या तो इसमें हम लोगों को एक लेटर देगा x, तो हम लोगों को बताना है कि x डिजिट है या अल्फाबेट है, और अगर वो अल्फाबेट है तो वो बताना है वो कैपिटल है कि स्मॉल है, राइट। तो डिजिट्स देगा 0 1 और कैपिटल लेटर A B और स्मॉल लेटर स्मॉल a स्मॉल b। तो इसमें हम लोग पूरा यूज वो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो पहले मैं ऑपरेटर समझा देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? एक तो एंड है, लाइक दिस इज एंड। तो ये अगर तुम्हारा दोनों कंडीशंस ट्रू है, लाइक ए एंड बी अगर आपने लिखा है, ये भी एक कंडीशन है, ए भी एक कंडीशन है और बी भी एक कंडीशन है, कुछ कंडीशन होगी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। तो अगर ये दोनों ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। पर अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुई, या ए फॉल्स हुई या बी फॉल्स हुई या दोनों फॉल्स हुई, तो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड समझ आया? लाइक अगर मान लो तुमने इनपुट ले रखा था A5 और बी इनपुट ले रखा था 7, और मान लो इफ में अगर आपने कंडीशन लिखी है कि इफ A ग्रेटर देन 2 एंड B ग्रेटर देन 5, तो बताओ ये इफ कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स? हेलो, फॉल्स होगा। फॉल्स कैसे? ए ग्रेटर देन जेड तो नहीं है, क्योंकि 5 ए का वैल्यू 5 और बी का 7 लिया है। तो 5 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं? ओ 2 True है। सॉरी, हाँ हाँ फिर सही है सही है। तो ये कंडीशन भी ट्रू है हाँ हाँ और हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है, राइट। तो जब दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हम लिख देते b लेस देन 5 तो ये फॉल्स हो जाती, और ये इफ में कभी अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि ये इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो हम ये मोस्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग ये कंडीशन में लिखते हैं, इफ एल्स में। और जो ऑपरेटर है वो ऐसे वो डिफाइन होता है डबल वर्टिकल से, इसको बोलते हैं और। तो इसमें ए और बी
तो अगर एक भी ट्रू होगी, या तो ए ट्रू हो या बी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी, ए भी फॉल्स बी भी फॉल्स, तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एम आई ऑडिबल? हाँ मतलब कोई Yes, भी एक sir. हो तो होगा, है ना? हाँ हाँ सही, कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। और एक है नॉट। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू। लाइक अगर हम बूल वाला केस ले, तो अगर हमारा फ्लैग ट्रू होता तो नॉट ट्रू अगर लिखते तो ये फॉल्स कर देता, और नॉट फॉल्स लिखते तो इसका मतलब ट्रू होता। मतलब ये रिवर्स कर देता है कंडीशन को। अगर नॉट के सामने ट्रू लिखा है तो उसको फॉल्स बना देगा, अगर नॉट के सामने फॉल्स लिखा है तो ट्रू बना देगा। और बाकी ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक ये कब कब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो भी ये ट्रू है, राइट? क्योंकि 5 से बड़ा या इक्वल है, या तो इक्वल भी हो तो भी चलेगा या बड़ा हो तो भी चलेगा। अगर यहाँ 6 ग्रेटर देन इक्वल 5 होता तो भी ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो या इक्वल हो। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो ये ट्रू होगा, समझे? तो हाँ समझ गए। सिमिलरली ये ऑपरेटर होते हैं लेस देन इक्वल। तो अगर a b के इक्वल हो या लेस हो तो भी ट्रू होगा। अब होता है इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल तभी ट्रू होगा जब दोनों इक्वल हो। लाइक ये तभी ट्रू होगा 5 इक्वल इक्वल 5 लिखोगे। अगर 5 इक्वल इक्वल 6 लिखोगे तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू देगा और ये फॉल्स। तो अगर हमको इक्वल इक्वल चेक करना है तो डबल इक्वल लिखते हैं, और सिंगल इक्वल तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है। लाइक ए को 2 असाइन किया, मतलब ए में 2 चला गया, इंट में इंट ए इक्वल टू 2 लिखा, मींस अब हमारा ए जो वेरिएबल है उसके अंदर 2 है, ए वेरिएबल के पास 2 स्टोर है। तो अगर इक्वल चेक करना है तो डबल इक्वल यूज करते हैं। और एक होता है नॉट इक्वल। सो ए नॉट इक्वल बी, तो ये तब ट्रू देगा जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। लाइक ये देगा 5 नॉट इक्वल 6 में ये ट्रू रहेगा, पर 5 नॉट इक्वल 5 में ये फॉल्स रहेगा। तो अगर तुमको कोई दो नंबर्स इक्वल चेक करने हैं तो ये कंडीशन, अगर कोई नॉट इक्वल चेक करने हैं तो ये कंडीशन। समझ आया? हाँ समझ गए। हाँ समझ गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आते हैं इफ एल्स कंडीशंस पे, तो वही प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो इफ एल्स और वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमको पहले वो एक कैरेक्टर देगा इनपुट में, तो हम ले लेते हैं कैर सी, और हम इसको इनपुट ले लेते हैं सी इन सी। तो अब वो बोला है, क्या बोला है, आउटपुट क्या करना है कि प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेन्स ईच डिजिट इफ x is digit, otherwise print alpha in the first line followed by a new line that contains is capital if x is capital and is small if x is a small letter। तो अगर डिजिट है तो हमको प्रिंट करना है सिंपल ईच डिजिट, और अगर कोई लेटर है अल्फाबेट है, अगर वो अल्फाबेट है तो अल्फा प्रिंट करना है, और फिर उसको बताना है कि वो कैपिटल था कि स्मॉल था। समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इफ एल्स लगाते हैं। अगर इफ सी जो हमारा लेटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड सी लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसका मतलब वो डिजिट है, राइट? सी आउट हाँ इज डिजिट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं।
अगर ये नहीं है एल्स इफ, अगर सी ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल ए एंड सी लेस देन इक्वल स्मॉल जेड है, तो हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट अल्फा, अल्फा पहले प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे इट इज स्मॉल, राइट, इज स्मॉल। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी नहीं, मतलब हमारा जो कंडीशन ना तो ये ट्रू हुई ना ये ट्रू हुई, तो इसका मतलब हमको पता है अब हमारा अल्फाबेट होगा और कैपिटल होगा, राइट। तो हम एल्स में सीधा लिख सकते हैं सी आउट अल्फा एंड एल सी आउट इज कैपिटल। स्लैश इन करके भी तो कर सकते थे, है ना? हाँ, मतलब मेरे को एंडल लिखने की आदत है, मैं हाँ यहाँ हाँ, ठीक है, किया ठीक है। हूँ, स्लैश एन भी कर सकते हैं। तो अगर अब इसको रन करें हम, तो तीनों टेस्ट केस पास हो। तो क्या होता है, पहले इफ एल्स इफ में क्या होता है, पहले हम शुरू से चालू करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये ब्लॉक यहीं पे खत्म हो जाएगा, हम लोग नीचे चेक ही नहीं करेंगे। अगर हमारा ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम एल्स इफ में नहीं जाएंगे, पर अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो सेकंड में आएंगे, एल्स इफ में आएंगे। अगर ये ट्रू हुई तो हम उसके नीचे नहीं जाएंगे, यहीं से बैक हो, यहीं से हमारा बाहर आ जाएगा आउटपुट। अगर ये भी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट एल्स पे जाएंगे। तो इफ एल्स इफ सीक्वेंसली काम करता है, और जब भी बीच में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई हम उससे बाहर आ जाते हैं, उसके नीचे चेक ही नहीं करते। पर अगर आप मल्टीपल इफ लिखोगे, लाइक अगर आप इफ एल्स इफ नहीं लिखोगे, अगर ऐसे लिखोगे, इफ पहला इफ लिखा, फिर नेक्स्ट इफ लिखा, फिर नेक्स्ट इफ लिखा, लाइक बीच में इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स नहीं कर रहे हो और सिर्फ इफ कर रहे हो, लाइक ये लिखते इफ दिस इफ दिस इफ दिस, तो वो तीनों को चेक करता। अगर मान लो पहला ट्रू हो गया ना, तो वो फिर भी चेक करेगा नेक्स्ट इफ को। अगर ये भी ट्रू हो गया वो फिर भी नेक्स्ट इफ को चेक करेगा। तो हमारा प्रोग्राम तीनों इफ को चेक करता हुआ जाएगा। पर इफ एल्स इफ और एल्स, अगर ऐसे कोड लिखोगे तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी वो ट्रू करके बाहर आ जाएगा, वो बाकी कंडीशन को देखेगा भी नहीं। ये समझ आया इफ एल्स इफ में क्या डिफरेंस है और लगातार इफ यूज करने में क्या डिफरेंस है? हाँ भैया। मीटिंग एंड फॉर ऑल कर देना जो खत्म। ठीक है, ये समझ आ गया ना, इफ एल्स इफ और एल्स, ये तीनों इफ यूज करने में क्या डिफरेंस है, और अगर हम इफ एल्स ऐसे यूज करते हैं तो क्या फर्क है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं रन हो रहा है या क्यों नहीं कंडीशन ट्रू हो रही। तो अगर ऐसे लिखोगे तो कभी भी एक भी पहली जो भी कंडीशन ट्रू मिल जाएगी वो वहीं से प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। पर अगर तीन भैया अगर हम इफ से बनाते हैं तो इसमें ब्रेक केवल इफ लगाते हैं, तो ब्रेक लगाएं तभी तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। हाँ, अगर व्हाट ब्रेक अगर हम लगाते हैं, जैसे कि तो ब्रेक कभी भी कंडीशन, ये इफ एल्स में ब्रेक लगाते हैं लूप से बाहर आने के लिए, ना कि कंडीशन से बाहर आने के लिए। भैया मैंने हम केवल इफ को बनाया है, मतलब केवल हमने इफ कंडीशन लिया है। तो एक्चुअली तुम्हारी आवाज थोड़ी ऑडिबल कम है। अरे भैया बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिया है इफ, उसके बाद लिया है एल्स इफ, तो वहाँ पर हम एल्स इफ की जगह पर हम केवल इफ लेते हैं, तो हम ब्रेक भी तो लगा सकते हैं ना, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ब्रेक हाँ भैया। कहाँ पे बोल रहे हो तुम, यहाँ पे? नहीं भैया इसके नीचे, हाँ वहाँ पर भी, वहाँ पर भी। तुम बोल रहे हो ये? हाँ भैया, इफ लगाया और लाइन नंबर 22 ऐसे? हाँ भैया। और ये वाला एल्स में क्या लिखोगे? ये तो ऑलरेडी नीचे भी, इसमें भी ब्रेक लगा सकते हैं। तो ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा, मैं बोला ना ब्रेक सिर्फ लूप से बाहर आने के लिए होता है। देखो, ए ब्रेक स्टेटमेंट में ओनली बी यूज्ड विद इन अ लूप, तो इफ एल्स इफ में कभी ब्रेक नहीं लगाते। ब्रेक कीवर्ड होता है सिर्फ लूप में। मतलब ब्रेक का आंसर भैया मतलब यूज कर सकते हैं केवल लूप में। हाँ, लूप से बाहर आने के लिए, ना कि कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन से बाहर आने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। वो लूप से बाहर आने के लिए।
तो अभी हम लोग चलते हैं लूप पे। तो लूप दो तरह का लूप है, राइट, एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है। तो फॉर लूप हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास कंडीशन क्लियर हो कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। लाइक अगर हमारा आई है इंट, अगर हमको पता है कि आई 1 से n तक जाना है तो हम मोस्टली फॉर लूप लगाएंगे। अगर हमको पता है कि हमारा लूप कब एंड होगा, फाइनलाइज कंडीशन प्रॉपर फॉर्मूला है हमारे पास। और वाइल तब लगाते हैं जब हमको पता नहीं है कि बीच में किस लेंथ पे एंड होगा। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि वाइल जब तक कंडीशन ट्रू है, कोई कंडीशन अगर ट्रू है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक वाइल लूप चलेगा। पर हमको फाइनल पता नहीं है कि वो एन तक ट्रू रहेगी या कभी भी ट्रू रहेगी। हम इसमें कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, तो हम कोई भी कंडीशन देंगे जब तक वो ट्रू रहेगी तो वाइल लूप चलेगा। लाइक अगर आपने देखा होगा क्यू वगैरह, जानते हो क्यू, तो हम वाइल लूप लिखते हैं क्योंकि वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, अगर जब तक हमारी क्यू खाली नहीं है तब तक हम लोग कुछ कुछ काम करेंगे, राइट। क्योंकि क्यू में क्या होता है, कोई हमारे इंडेक्स तो होते नहीं कि 0 से चालू है और एन तक, तो हम कंडीशन लिखते हैं वाइल लूप में कि जब तक हमारी क्यू जो है खाली नहीं है तब तक लूप चलाते रहो। तो वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंडीशन हो कि ये कंडीशन जब तक ट्रू हो चलाते रहो। और फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमको पता हो कि कहां से कहां तक हम लोगों को जाना है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? यस सर। ठीक है। तो जैसे इसमें यह गिवन n नंबर्स है और काउंट हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड इवन पॉजिटिव नेगेटिव, तो n देगा और हमको 1 से n तक बताने हैं कितने इवन है, कितने ऑड है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इफ एल्स फॉर लूप सब। तो हम पहले एक इंटीजर लेंगे n, क्या था प्रॉब्लम, फर्स्ट लाइन कंटेन, सेकंड लाइन कंटेन्स n नंबर्स। इंटीजर लेंगे n, फिर इसको इनपुट लेंगे c इन n, और इन नंबर्स को क्या करते हैं, पहले इनपुट ले लेते हैं या तो वेक्टर्स में, राइट। वेक्टर में इनपुट ले लेते हैं या फिर काउंट डिफाइन कर लेते हैं, ऑड का काउंट इंट ऑड इक्वल टू 0 और इवन का काउंट 0 शुरू में, पॉजिटिव का काउंट 0 और नेगेटिव का काउंट 0, राइट। अभी हमने ऑड इवन पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि कितना काउंट है इनका, तो अभी तो कुछ है नहीं तो सबका 0 काउंट है। अब हम लूप चलाएंगे क्योंकि हमको पता है n नंबर्स इनपुट लेने हैं, तो इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल n, i प्लस प्लस। तो इसका क्या मतलब है, ये इनिशियलाइज, ये आइटरेटर है, लाइक लूप का वेरिएबल है, तो ये आइटरेटर 1 से चालू होगा और n तक जाएगा, लेस देन इक्वल n। तो 1 से चालू होगा, तो अगर ये 5 है तो 1 पे जाएगा, फिर अंदर जाएगा, नहीं 1 पे इनिशियलाइज होगा, चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर आएगा, और जैसे ही वो फॉर लूप खत्म होगा वो i प्लस प्लस कर देगा। i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर, i को 1 से बढ़ा देगा, तो नेक्स्ट में i 2 रहेगा और 2 पे फिर कंडीशन चेक होगा कि 2 लेस देन इक्वल n है कि नहीं, तो 2 5 से कम है तो वो ट्रू रहेगा। फिर से फॉर लूप में जाएंगे, फिर i प्लस प्लस होगा, 3 होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, फिर से फॉर लूप में जाएंगे, फिर i प्लस प्लस होगा तो 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, फिर से लूप में जाएंगे, फिर से i प्लस प्लस होगा, i 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल 5 है, ट्रू है, फिर से अंदर जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i हो गया 6, अब 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यह फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉर लूप में हम इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन देते हैं कब तक चलाना है और उसके हिसाब से इंक्रीमेंट करते हैं। समझ आया फॉर लूप का वर्किंग? तो अब इस फॉर लूप में हमको क्या करना है, एक इंटीजर लेना है, राइट, इंट x, क्योंकि ये इंटीजर्स है, राइट। तो इंट x लेंगे, इसको सीन करेंगे, सीन x। तो अगर अब हम इफ लगाएंगे कि अगर इफ x हमारा इवन है, तो इवन चेक करने के लिए कंडीशन है
अगर हम उसको 2 से रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0, राइट। ये कंडीशन पता है ना कि अगर कोई नंबर इवन है अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और ये मॉड्यूलो क्या देता है रिमाइंडर। तो इवन का काउंट बढ़ा देंगे, पर अगर इफ x मॉड्यूलो 2, अगर x का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके 1 आया तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑड है, तो ऑड को बढ़ा देंगे, राइट। इफ x जो है ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का काउंट बढ़ा देंगे, पॉजिटिव प्लस प्लस। इफ x क्या है नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो हम लोग नेगेटिव का काउंट बढ़ा देंगे। ये क्लियर है क्या नहीं, ये बताओ, ये चारों कंडीशन। हाँ 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 भैया। क्लियर है भैया। इसने 0 भी दिया है क्या, 0 को किस में लेना है, 0 को इवन में लिया है, जीरो तो इवन में लेगा। हाँ इवन में तो लेगा, मैं पॉजिटिव, हाँ तो ना तो 0 को वो पॉजिटिव कंसीडर किया है ना नेगेटिव किया है, तो हम लोगों की कंडीशन सही है। यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बढ़ा दे रहे हैं, और ये ले रहे हैं तो नेगेटिव। तो अब अगर इसको हमको रिजल्ट्स को प्रिंट करना हो तो सी आउट E1 पहले प्रिंट करना है तो E1 लिखेंगे और ये कॉलन लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और E1 का काउंट लिख देंगे जो E1 स्टोर है एंड न्यू लाइन। सिमिलरली यही लाइन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल 1 सेकंड। तो पहले E1 प्रिंट करना है, फिर ऑड प्रिंट करना है, ऑड, यहाँ पे ऑड का काउंट, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव का काउंट पोज में स्टोर है, और यहाँ पे नेगेटिव, ये नेग में स्टोर है। इसको रन करके देखते हैं। फील्ड फील्ड क्यों हो गया है, अगर x मॉड्यूलो 2 E1 है 3, ऑड नहीं आएगा भैया क्योंकि ये तो ऑड तो ये 1 से। एक्चुअली मॉड्यूलो 2 क्या है, ये नेगेटिव में डिफाइन हो रखा है, राइट। हाँ इसलिए शायद नहीं हो सकता। तो इसलिए इसलिए अंदर एक एल्स कंडीशन दे सकते हो, इफ के साथ ऊपर जो इफ दिया है ना उसके साथ एल्स से कनेक्ट कर सकते हो। अगर मॉड्यूलर 2 0 नहीं है तो ऑड हो जाएगा, ऑड प्लस प्लस कर सकते हो। हाँ वो तो सही है, पर फिर वो आगे इफ नहीं चलेगा ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, वो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा देकर कर सकते हो। ये बोल रहे हो ना तुम एल्स, हाँ 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 वही बोल रहे हैं, एक तो सेकंड। वो खत्म हो जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव का रिमाइंडर थोड़ा अलग हाँ हाँ काम करता है। लाइक अगर नेगेटिव है ना कोई चीज तो उसमें मॉड्यूलो अच्छे से काम नहीं करता है, एक्स मॉड्यूलो ये C++ में काम नहीं करता है, पर अगर आप लोग पाइथन यूज करते हैं ना तो यही सही चल जाता, क्योंकि वहां नेगेटिव के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें यही बेटर रहेगा कि मॉड्यूलो 2 == 0 के लिए ये कर दो और एल्स में वो लिख दो। लाइक मैं अगर अपना लास्ट सबमिशन देखूं तो क्या किया, हाँ ओके, या ये भी कर सकते हो कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 है तो वो हमेशा हमें पता है कि E1 है, राइट। अगर मॉड्यूलो 2 0 है तो हमको पता है कि वो समझा नहीं क्या किया। एक सेकंड, अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल 0, तो ऑड को प्लस प्लस, अब भी सही चलेगा ये, क्योंकि वो E1 पे ही हमेशा पता है कि 0 देगा, राइट। हाँ पर नेगेटिव है तो वो जरूरी नहीं है 1 देगा, वो कुछ भी दे सकता है। लगे हाँ अगर हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब नॉट इक्वल टू।
तो देखो अगर सी आउट -5 मॉड्यूलो 2 करोगे ना तो ये 1 नहीं देगा, पता नहीं कुछ रैंडम देगा, अभी देखते हैं। लाइक 1 माइनस कुछ 5 देगा, ये -1 दिया देखो, क्योंकि नेगेटिव में ना ये क्या करता है, नेगेटिव को हटा के ऐसे काम कर लेता है इसी में। तो 5 मॉड्यूलो 2 क्या हो गया, +1, राइट, +1 देगा, और ये माइनस बाहर ऐसे एज्यूम करके तो ये -1 प्रिंट कर देता है। तो अगर तुम यहाँ पे ऐसे भी लिखोगे ना, x मॉड्यूलो 2 = 1 और x मॉड्यूलो 2 = -1 तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि या तो वो 1 होगा या -1 होगा। अगर नेगेटिव होगा नंबर तो -1 देगा मॉड्यूलो, अगर पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, राइट। तो इसको चाहे तो हम लोग समझ के भी देख सकते हैं। कहाँ गया नंबर, वो मॉड्यूलो ना C++ में थोड़ा डिफरेंट काम करता है, ये शायद मैथ क्लास में हमको सिखाएंगे भी। हाँ ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, हाँ हो गया ना। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, अगर, क्योंकि हमको पता है x पॉजिटिव है, मॉड्यूलो 2 करेंगे तो 1 देगा, और नेगेटिव है तो -1 देगा, क्योंकि वो माइनस को बाहर, अभी दिखाया था ना मैं, -5 मॉड्यूलो 2, वो माइनस को बाहर एज्यूम कर लेता है और 5 मॉड्यूलो 2 कर देता है, तो 1 हो गया, और माइनस पहले से ही लगा रहेगा तो -1। समझ आई ये कंडीशन? हाँ भैया। ओके ओके, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। लग रहा है काफी ये क्लास स्लो जा रही है कि पेस सही है, या थोड़ा बढ़ाऊं? अभी C++ बेसिक्स तो हमारे कवर हो गए। सही है भैया। हेलो, हाँ बताइए। सही है भैया। ये इतना इकोइंग क्यों हो रहा है, एक सेकंड। पता नहीं। ओके, एक वाइल लूप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये C++ बेसिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड पासवर्ड है, तो हमको मल्टीपल लाइन दी गई है जिसमें x है, कुछ नंबर x देगा, वो एक पासवर्ड है। तो प्रिंट करना है रॉन्ग अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है, अदरवाइज प्रिंट करना है करेक्ट, और टर्मिनेट कर देना है प्रोग्राम को। मतलब जब भी हमें पहला करेक्ट मिलेगा हमको वहीं पे रोक के बाहर आ जाना है। और ये बोला है करेक्ट पासवर्ड इज द नंबर 1999। तो जैसे ये इनपुट दिया तो ये तो 199 नहीं है तो रॉन्ग प्रिंट कर दिया, ये भी 199 नहीं है तो रॉन्ग प्रिंट कर दिया, ये 199 है, करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे जा भी नहीं रहे क्योंकि हमको पहला करेक्ट मिल गया, समझे? तो इसमें हमको कंडीशन पता है कि ये कंडीशन 199 है, राइट। इसमें हमको मतलब इसलिए व्हाइल लगा देंगे, अगर ये इक्वल टू ये है तो ट्रू है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाँ, तो देखो इसलिए व्हाइल लगाएंगे क्योंकि हमको कंडीशन मालूम है, हमको ये नहीं पता कहाँ तक जाना है, पर हमको ये पता है कंडीशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर लेंगे, पहले इनपुट लेंगे पहला नंबर, और हम चेक करेंगे व्हाइल में। अगर व्हाइल ये नहीं है, 199 नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, रॉन्ग को प्रिंट करके फिर अगला इंटीजर इनपुट लेंगे C(x), राइट। अब अगला 1020 जाएगा, 1020 नहीं है वो रॉन्ग प्रिंट करेगा, फिर अगला इंटीजर इनपुट लेगा, 1999 इनपुट लिया, ये फॉल्स हो गई तो हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, फॉल्स हो गई और करेक्ट करके ब्रेक कर, मतलब बाहर आके करेक्ट प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम समझ आया? हाँ आ गया। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो डाउट पूछ सकते हो। इसमें मेन यही दिखाना था कि फॉर और व्हाइल में क्या डिफरेंस है। लाइक इसमें फॉर लूप लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कहाँ तक नंबर लेने हैं, कहाँ तक जाना है। तो व्हाइल इस केस में सबसे बेस्ट है कि व्हाइल जब तक फॉल्स है तो रॉन्ग प्रिंट कर दो और नया नंबर इनपुट ले लो, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और करेक्ट प्रिंट कर देंगे। भैया ये फॉर लूप जो होता है वो लिमिट डिजिट के लिए होता है क्या? किसके लिए? फॉर लूप जो होता है लिमिट डिजिट के लिए होता है, क्योंकि आप बोले कि अगर फॉर लूप रहता तो वो प्रिंट नहीं हो पाता, मतलब प्रिंट नहीं हो पाता, ये कहाँ बोला मैं? तो भैया मतलब ये अगर व्हाइल को हटाकर फॉर लगा देंगे तो क्या ये होगा प्रिंट? तो तुम फोर का तो तुमको पता है ना, फोर का कैसे वर्क करता है। हमको चालू स्टार्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन देनी होती है और हमको देनी होती है जाना कहाँ तक है
और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये है फॉर लूप का सिंटेक्स। अच्छा हमको ये हाँ पता ही नहीं है ना कहाँ से चालू करना है, कहाँ तक जाना है। ओके ओके हाँ भैया इसमें ठीक बस है। हर नंबर इनपुट लेना है, चेक करना है कि वो 199 है कि नहीं। तो वहां पे इसमें ग्रेटर देन इन होगा ना, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा ना? कहाँ पे? जहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन इन होगा ना? लेस देन है ये, लेस लेस देन। देन, सॉरी सॉरी, लेस देन होगा ना? हाँ तो लेस लेस देन देन, इक्वल टू होगा। लाइक अगर n तक हाँ अगर n तक जाना है तो हाँ, लेस हाँ, देन हाँ, n, हाँ वो तो। ओके ये भैया फाइल समझ आ गया ना कैसे काम करता है? हम्म, लाइक अगर कंडीशन हमें पता है किस पे रोकना है वाइल को, या किस कब तक चालू रखना है वाइल को, वो कंडीशन वाइल में दे देंगे तो वाइल काम करेगा। तो अब हम लोग ये बेसिक C++ पूरा कवर हो गया, अब थोड़ा HTML पे आते हैं। तो HTML में पहले हम लोग देखेंगे एरे। तो एरे क्या होता है? लाइक ये फिक्स्ड साइज का कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है और होमोजीनियस रहता है। लाइक हम लोग एक ही टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, या तो एरे इंटीजर का बना सकते हैं, या लॉन्ग लॉन्ग का, या कैर का, या डबल्स का, या फ्लोट का। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही एरे में इंटीजर भी स्टोर है और कैरेक्टर भी स्टोर है या स्ट्रिंग भी स्टोर है, मतलब ऐसा नहीं होगा, होमोजीनियस होगा। या तो सारे इंटीजर्स होंगे, सारे डबल्स होंगे, सारे फ्लोट होंगे, और वो फिक्स्ड साइज का रहता है। और इंडेक्सिंग क्या होता है? स्टार्ट करते हैं 0 से। तो फिक्स्ड साइज मतलब एरे स्टैटिक होता है, लाइक इसको तुम आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको लाइक बीच में जरूरत हुआ कि एरे में n+2 रखने एलिमेंट, तो वो तुम बीच में चेंज नहीं कर सकते एरे का साइज। तो उसके लिए हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये डायनामिक, हम वेक्टर्स में कभी भी साइज घटा मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये एरे का नॉर्मल सवाल है, एक एरे है दिया है, पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो ये सबको चेक करना आता ही होगा आई गेस। हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक शुरू में ले लेंगे, एक लास्ट में ले लेंगे, और चेक करेंगे ये AI इक्वल इक्वल AJ है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, आई को भी प्लस प्लस कर देंगे और जे को माइनस माइनस। अगर ये इक्वल है फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो आई को प्लस प्लस, जे को माइनस माइनस। और जैसे आई लेस देन मतलब आई ग्रेटर देन जे होगा, हम ब्रेक कर जाएंगे। ये समझ आया है कैसे करना है कोड? हाँ भैया। ये कोड करके दिखाऊं कि किस, या इसको स्किप कर सकते हैं? हो जाएगा भैया, हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये तो सिंपल है। और मेन वेक्टर में और एरे में, अभी वेक्टर आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा वेक्टर और एरे में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग हाँ वेक्टर पे ही चलते हैं। तो वेक्टर पे कुछ फंक्शंस होते हैं जो जो हम यूज कर सकते हैं। लाइक कुछ कुछ हमारे पास फंक्शंस प्री डिफाइंड है, इसको STL बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उसमें ही डिफाइंड है ये वेक्टर, और उस वेक्टर के साथ कुछ कुछ हमको फंक्शंस देते हैं। तो वेक्टर में कुछ फंक्शंस है लाइक पॉप बैक। पॉप बैक क्या करता है, जो लास्ट नंबर होगा ना वेक्टर में प्रेजेंट, उसको रिमूव कर देगा, उसको एरे वेक्टर से हटा देगा। लाइक ऐसे, अगर हमारा वेक्टर है ऐसा, यहाँ 1 प्रेजेंट है, या 3 प्रेजेंट है, या 4 प्रेजेंट है, या 6 प्रेजेंट है, तो अगर तुमने कमांड लिखा v.popback, पॉपबैक ऐसे, तो क्या करेगा, अब नया जो वेक्टर हमारा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा 1 3 4। ये 6 को जो है, जो लास्ट में प्रेजेंट है, उसको हटा देता। पर ये कुछ रिटर्न नहीं करता वैल्यू। लाइक ऐसा नहीं कर सकते तुम हटा के इसको किसी इंटीजर में स्टोर करके देख सकते हो। तो v.popback ये नहीं चलेगा, ये कुछ स्टोर नहीं करेगा, बस उसको हटा देगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। पर अगर तुमको लाइक बैक लास्ट में देखना है कि क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, देखना है, तो उसको स्टोर कर सकते हो इंट में, कुछ इंट a इक्वल टू v.back। तो v.back क्या करेगा, तुमको जो एरे के लास्ट में जो प्रेजेंट है उसको रिटर्न कर देगा।
तो ए अगर प्रिंट करोगे तो वो 6 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही वी डॉट फ्रंट जो है हमको पहला एलिमेंट देगा जो प्रेजेंट है, वी डॉट बैक लास्ट एलिमेंट देगा, वी डॉट फ्रंट पहला एलिमेंट देगा, और पॉप बैक लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। और दोबारा पॉप बैक करोगे तो 4 रिमूव हो जाएगा, फिर दोबारा पॉप बैक करोगे तो 3 रिमूव हो जाएगा, और जब एक और बार पॉप बैक करोगे तो 1 रिमूव हो जाएगा। फिर तो कुछ एलिमेंट बचा ही नहीं, तो कुछ पॉप बैक कर ही नहीं सकते। तो ये पॉप बैक था, ये फ्रंट था, ये बैक था। एक बार फिर से पॉप बैक बोलोगे जरा। ठीक, पॉप बैक में अगर पहली बार पॉप बैक करोगे तो अभी लास्ट एलिमेंट क्या है 6, वो 6 को रिमूव कर देगा बस सीधा। फिर अगली बार पॉप बैक यूज करोगे, अभी लास्ट एलिमेंट क्या है 4, वो 4 को रिमूव कर देगा वेक्टर से। फिर एक और बार अगर पॉप बैक लगाया तो 3 रिमूव हो जाएगा, एक और बार लगाया तो 1 रिमूव हो जाएगा, और फिर तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि एरे बचा ही नहीं। आया समझ? हाँ समझ गया। फिर ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं, सॉर्ट L to R, रिवर्स L to R, प्रिंट, और अच्छा अभी बताता हूँ पुशबैक। पुशबैक क्या करता है, लाइक अगर एलिमेंट तुमको यहाँ, जैसे ये डायनामिक कैसे है वो बताता हूँ। तो अगर 1 3 4 6 है, पर अगर तुमको कभी कोड में तुमको कुछ और डालना है इसमें और वो पीछे डालना है, तो हम लोग पुशबैक करेंगे। तो अगर 7 डालना है तो हम लिखेंगे v डॉट पुशबैक 7। अगर v डॉट पुशबैक 7 लिखा तो एरे के वेक्टर के लास्ट में 7 पुशबैक हो जाएगा। अगर कुछ और डालना है, फिर अगर 8 डालना है तो v डॉट पुशबैक 8 लिखोगे तो एरे ऐसा हो जाएगा। 10 डालना है तो v डॉट पुशबैक 10 लिखो। तो हम लोग इसका साइज कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कैसे, पुशबैक करके। घटा सकते हैं कैसे, पॉप बैक करके। तो इसलिए ये डायनामिक है, लेकिन ये सब फंक्शंस हम लोग एरे में नहीं कर सकते। और सॉर्ट भी एक, जो ये सॉर्ट फंक्शन है, ये भी एक STL का एल्गोरिदम है। अगर तुमको किसी रेंज में एरे को सॉर्ट करना है तो आइट्रेटर होता है। लाइक वेक्टर में क्या होते हैं, आइट्रेटर्स होते हैं। बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर, वेक्टर में क्या है, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर्स हैं। लाइक हम आगे से भी आइट्रेट कर सकते हैं और पीछे से भी। तो ये जो पहला इंडेक्स पे जो आइट्रेटर होता है, इसको बोलते हैं v डॉट बिगिन, राइट। और v डॉट एंड होता है जब एरे खत्म हो जाता है ना, उसके अगले वाला जो नेक्स्ट पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं v डॉट एंड। तो ये एक बार रिपीट कीजिए, तो ये बाई डायरेक्शनल वेक्टर क्या करता है? लाइक बाई डायरेक्शनल होता है कि तुम लोग आइट्रेटर को ऐसे आगे से भी मूव करा सकते हो और पीछे से भी मूव करा सकते हो। लाइक अगर इटरेट करना है ना वेक्टर पे आइट्रेटर्स के थ्रू, तो हम आगे से भी आइट्रेट कर सकते हैं और पीछे से भी आइट्रेट कर सकते हैं। भैया डिजिट के थ्रू बताइए ना थोड़ा, डिजिट मतलब वैल्यू पुट्स करके एक बार बता सकते हैं? हाँ हाँ आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो ना। हाँ, ये वाला बताऊंगा ना, उसमें है। तो पहले मैं समझा देता हूँ ये बिगिन एंड क्या है, राइट। तो बिगिन क्या है, पहला एलिमेंट का जो आइट्रेटर होता है उसको v डॉट बिगिन। v डॉट एंड क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है उससे नेक्स्ट वाला। लाइक वहां पे कुछ है नहीं, पर ये पॉइंट करता है उसको v डॉट एंड। तो अगर हमको सॉर्ट यूज करना है तो सॉर्ट में हमको 2 कमांड्स देनी होती है कि कहां से कहां तक सॉर्ट करना है। ये L लेफ्ट लिमिट देंगे, ये R राइट लिमिट देंगे। और ये जो सॉर्ट होगा वो L क्लोज्ड रहेगा लेकिन R ओपन रहेगा। इसका मतलब पता है किसी को, L क्लोज्ड और R ओपन? नहीं, L to close, right to open, I guess. आई थिंक हाँ, मतलब एल क्लोज का मतलब है एल इंक्लूड होगा और आर इंक्लूड नहीं होगा। या नाइस। तो क्या है, क्योंकि हमको अगर पूरा वेक्टर सॉर्ट करना है तो हम L को क्या देंगे, v डॉट बिगिन, और R को देंगे v डॉट एंड। तो क्या करेगा वो, एंड इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब वो यहाँ तक इंक्लूड करेगा। तो मतलब वो पूरे एरे को सॉर्ट कर देगा। तो हमको जहां से जहां तक रेंज देनी होती है
तो लेफ्ट लिमिट देंगे जहां से हमको चालू करना है सॉर्टिंग, और राइट लिमिट देंगे जहां तक करना है उससे एक आगे वाला आइटरेटर, क्योंकि वो ओपन है, वो वहां तक जाएगा नहीं, r-1 पे क्लोज्ड रहेगा, वो r को कभी वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम लोग जो r लिमिट देंगे जहां तक हमको जहां से जहां तक करना है उसका एक नेक्स्ट वाला देंगे आइटरेटर, ये समझे? हो गया, और एक बार रिपीट कीजिए ना। रिपीट। ठीक है, अगर हम सॉर्ट क्या करता है, दो रेंज मांगता है L to R, और L क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है, मतलब इंक्लूड रहता है, मतलब वो रहेगा। R क्या रहता है, ओपन, मतलब वो वहां तक जाएगा नहीं, उससे एक कम तक जाएगा। तो अच्छा, एक रैंडम एग्जांपल लीजिए ना, मतलब 1 2 3 4 कैसे, कुछ रैंडम लीजिए और एक दिखाइए। एक सेकंड, अगर 1 3 2 4 है मान लो एलिमेंट, और तुम करते हो ये v डॉट बिगिन है, ये v डॉट बिगिन +1 है, ये v डॉट बिगिन +2 है, ये v डॉट बिगिन +3 है, राइट? ये v डॉट बिगिन है, ये v डॉट बिगिन +1 है, ये आइटरेटर, ये v डॉट बिगिन +2 है, ये v डॉट बिगिन +3 है, और ये इसका नेक्स्ट ये है v डॉट एंड। तो अगर तुमको पूरा 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 ये सॉर्ट करना है, लाइक पूरा एरे, तो तुम v डॉट बिगिन से चालू करोगे, और ये एंड यहाँ पे हो रहा है, और हमको उसका नेक्स्ट आइटरेटर लेंगे r में, क्योंकि r ओपन रहता है। तो r में जहां तक करना है उससे एक आगे वाला आइटरेटर पास करते हैं, क्योंकि वो उससे कम तक जाता है, r ओपन है, r को वो कभी जाएगा नहीं, r से पहले तक जाएगा। तो हम v डॉट एंड देंगे, तो ये सॉर्ट हो जाएगा 1 2 3 4। पर अगर तुमने L दिया v डॉट बिगिन और R दिया v डॉट बिगिन +3, तो तुम्हारा एरे बस यहीं तक सॉर्ट होगा। तो वो क्या आंसर देगा, 1 2 3 4। ऐसे भी पूरा सॉर्ट हो गया क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट था। पर अगर तुमने v डॉट बिगिन +2 दिया R को दिया v डॉट बिगिन +2, तो तुम्हारा ये सॉर्ट होगा बस। तो नया एरे क्या रहेगा, 1 3 2 4। अब समझ आया R और L कैसे देने हैं? लास्ट में r की जगह पे 1 v डॉट +2 अगर दिया तो क्या होगा, फिर से बताए एक बार। अगर v बिगिन +2 देगा तो वो हाँ। एरे यहीं तक सॉर्ट होगा। अच्छा, मतलब 1 3 एज यूजुअल दिखाएगा और 2 + 4 मतलब एक कम की जगह पे होता है, मतलब लास्ट को फिक्स कर देगा। हाँ, लाइक लास्ट जो R दोगे ना, R दोगे तो वो उससे कम तक वो फंक्शन अप्लाई होगा। अच्छा अच्छा, अगर ये टोटल एज यूजुअल वी बिगिन और वी सॉर्ट वी बिगिन एंड वी एंड, तो 1 2 3 4 नॉर्मल एज यूजुअल देगा, है ना? क्योंकि v डॉट एंड जो है उससे आगे आइटरेटर होता है, v डॉट एंड ये होता ही नहीं। अच्छा v डॉट एंड यहाँ पॉइंट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो समझ गए ना, तो v डॉट एंड देंगे तो वो यहाँ तक कर देगा, क्योंकि एंड यहाँ है, तो एंड तक जाना नहीं है, उससे एक पहले तक जाना है। समझ गया। ओके, तो ये सॉर्ट हो। ऐसे ही रिवर्स भी सेम काम करता है। L उसको लेफ्ट रेंज देंगे, राइट रेंज देंगे, और राइट तक कभी जाएगा नहीं, बस ये याद रखना। R ओपन रहता है हर चीज में, तो R तुमको जहां तक रिवर्स करना है उससे एक आगे वाला आइटरेटर देना होता है। अच्छा, समझ गया। ठीक, एक चीज पूछना था, रिटर्न का केस में क्या होगा वेक्टर का? वेक्टर रिटर्न कहाँ है? नहीं, रिटर्न के केस में क्या होगा वो पूछ रहा हूँ, मतलब वेक्टर के रिटर्न अगर कहीं पे करना हो तो वेक्टर ही रिटर्न करेगा या फिर वो इंटीजर भी कर सकता है? रिटर्न v, हाँ हाँ। तो ये वेक्टर रिटर्न, अगर तुम्हारा फंक्शन वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर इंट रिटर्न करने वाला, तो वेक्टर रिटर्न करेगा। अगर ये वेक्टर रिटर्न फंक्शन है कुछ तुम्हारा fn, और इसमें तुम कुछ काम कर रहे हो, और अगर तुम यहाँ पे कुछ काम किया और रिटर्न कर दिए भी, तो ये पूरा वेक्टर रिटर्न हो जाएगा ना इसमें। लाइक क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं तुम्हारा ना, एक्चुअली में अगर सोचिए कि अगर वेक्टर में कुछ प्रोग्राम करना हो, सोचिए कि एक नंबर मतलब एक एरे दिया हुआ हो
और उसमें बोला है कि ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है, मतलब कौन सी लोकेशन में है ये पता करना है। हाँ हाँ। ये वेक्टर से करना है, ठीक है। तो हम्म। मेरे को तो लोकेशन मालूम चल गया कि वो फर्स्ट पोजीशन की, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, अगर सोचिए ये सेकंड पोजीशन में, हाँ, जो मेंशन किया है, तो ये इंटीजर वैल्यू निकला ना, तो इसको हाँ, वेक्टर में कैसे ट्रांसफर करें? तो इसको इंटीजर, इसको सेव कर लो ना, तुम इनिशियलाइज कर लो कुछ इंट। अच्छा, उसको एक अलग वेक्टर में डाल देंगे, नहीं, एक वेक्टर साइज वेरिएबल, 0 में। एक वेरिएबल स्टोर कर लो इंट idx -1, और जब भी तुमको x मिलेगा, वेक्टर पे इटरेट करो, जब भी तुमको x मिला जो नंबर ढूंढ रहे हो, तो उसको अपडेट कर दो कि idx = i, और ब्रेक कर जाओ और यहाँ पे रिटर्न कर दो idx, बस। मैं समझा नहीं, फिर से एक बार बताइएगा। मैं तुमको ये दिखाई देता हूँ। अगर तुम्हारा वेक्टर है int v, राइट, और मान लो वेक्टर में एलिमेंट प्रेजेंट है 1 3 5 7, राइट, हाँ, और तुमको सर्च करना है 5, तो तुम एक 5 का इंडेक्स सर्च करना है, तो एक इंट idx ले लो, उसको इनिशियलाइज कर दो -1 से, और हम आप किस पे आइटरेट कर रहे हैं, वेक्टर के एलिमेंट, तो इंट i 0 से कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 3 4, तो i <4 तक जाएंगे, i++। और हम जब भी देखेंगे इफ v ऑफ i अगर इक्वल है 5 के, राइट, हमको 5 देखना है, तो idx को हम i दे देंगे और ब्रेक कर जाएंगे इस लूप से। तो अगर हम यहाँ पे तुम सी आउट करोगे idx, तो तुमको 5 का इंडेक्स मिल जाएगा ना। अच्छा, तो 2 दिया, देखो आउटपुट क्या है, 2 0 1 2, तो 5 2 पे रखा है, समझे। समझे। भैया एक डाउट है। एक्चुअली अगर मैं इटरेटर दूंगा, एंड की जगह पे इटरेटर दे दूंगा, तो मुझे वी डॉट बिगिन से करूंगा और एंड तक चलाऊंगा, उसमें अगर मुझे किसी का इंडेक्स पता करना है तो कैसे पता करूंगा उसमें हाँ, इटरेटर रिटर्न करेगा अगर निकालूंगा तो। हाँ, मुझे राइट राइट, बताता हूँ। ऑटो इट IT = अगर आप करोगे v डॉट बिगिन, राइट, और IT नॉट इक्वल, आईटी क्या चीज होता है? मैं वेरिएबल दिया हूँ, इटरेटर है ये। अच्छा, वो जो अभी v डॉट बिगिन और v डॉट एंड मैं बता रहा था ना, उससे भी तो आइटरेट कर सकते हैं ना वेक्टर को। अच्छा, और आईटी का काम क्या होता है फिर, मतलब ऐसे ही नॉर्मल जैसे वी डॉट बिगिन और वी, अच्छा, इसको इनिशियलाइज किया ऐसे। हाँ, लाइक अच्छा, हम लोग बिगिन से चालू करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक एंड नहीं है, लाइक जब भी एंड पहुंच जाएगा हम लोग बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही कोई नाम दिया, आईटी IT नॉर्मल नाम नेम है। दिया, हाँ। हाँ हाँ। तो और अगर IT पे जो वैल्यू है वो चेक करनी है, तो हम लोग स्टार एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, स्टार IT, लाइक IT पॉइंट करता है उस वैल्यू को, पर अगर वो वैल्यू पता करनी है कि क्या है, तो हम लोग आई स्टार लगाते हैं, समझे, उससे पहले। और इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम कह रहे हो, तो इसको भी एक आइटरेटर बनाना होगा, राइट, कुछ ऑटो। ओके भैया, मतलब ये पॉइंटर की तरह काम कर रहा है ना बस। हाँ हाँ, पॉइंटर की तरह। बस ठीक है। तो इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे कुछ IT हो जाएगा, राइट, हाँ, मतलब रिफरेंसिंग। और शुरू में हम इसको कुछ v डॉट बिगिन दे देते हैं। और अगर तुमको अब ये चाहिए, तो तुम्हारा आइटरेटर है, देखो ये क्या है, v डॉट बिगिन, ये क्या है, v डॉट बिगिन +1, ये क्या है, v डॉट बिगिन +2। तो अगर इंडेक्स में से तुम v डॉट बिगिन माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना। देखो आ गया ना 2, क्योंकि ये क्या था, ये v डॉट बिगिन था, ये क्या था, v डॉट बिगिन +1, ये क्या था, v डॉट बिगिन +2। तो idx अभी यहाँ पे हमारा क्या देगा, v डॉट बिगिन +2, और अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे v डॉट बिगिन, तो 2 दे देगा ना इंडेक्स। जिसने पूछा था डाउट क्लियर है अब। हाँ भैया, हाँ। बट व्हाट इज ऑटो, क्या है ऑटो ऑटो? लाइक क्या करता है ना, ऑटो कीवर्ड है, अगर तुम लिखना नहीं चाहते ना आइटरेटर के लिए, कुछ बहुत बड़ा सा लिखना होता है, लाइक std वेक्टर आइटरेटर IT, ऐसे कुछ, मेरे को भी वो याद नहीं है,
STD करके कुछ बड़ा सा, तो ऑटो बोल क्या, रहे हैं इसलिए ऑटो यूज किया जाता है, जैसे कि ये पूरा नहीं लिखना हो तो। हाँ पूरा नहीं लिखना हो ना, तो वो ऑटो क्या करता है, वो अपने आप ही इसको असाइन कर लेता है डेटा टाइप। लाइक जो भी आइट्रेटर का डेटा टाइप होगा ना, वो अपने आप ही एज्यूम कर लेगा क्या है, कंपाइलर अपने आप। ओके ओके गॉट इट। लाइक तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऑटो x इक्वल टू 5, तो वो एज्यूम कर लेगा कि ये इंट लिखना चाह रहे हो आप। ओके ओके हाँ नहीं तो आइट्रेटर के लिए कुछ बड़ा सा कमांड लिखना होता, मेरे को भी याद नहीं, इसलिए मैं हमेशा ऑटो लिखता हूँ। समझ आया ये आइट्रेटर कैसे काम कर रहा है? हाँ तो आइट्रेटर क्लियर है, तो और सॉर्टिंग क्लियर, तो वो सवाल देख लेते हैं। वो सवाल में कहाँ गया ये, तो इसमें वो एक कुछ कुछ क्वेरीज दिया है तुमको। एक n इंटीजर दिया है 8 जो कि साइज ऑफ एरे है, और 7 है जो नंबर ऑफ क्वेरीज दिया है। तो क्या कह रहा है, हर क्वेरी में कुछ ना कुछ बोल रहा है वो करने को। वो कह रहा है सॉर्ट 5 to 8 कि जो 5 से लेके एलिमेंट, ये 1 बेड इंडेक्सिंग है शायद, हाँ 1 बेड इंडेक्सिंग है। तो वो कह रहा है 1 2 3 4 5 कि 5 6 7 8 5 से लेके 8 तक इसको सॉर्ट कर दो। तो एरे क्या हो जाएगा 2 3 4 7। फिर वो कह रहा है पॉप बैक कर दो कि लास्ट वाला एलिमेंट हटा दो। फिर वो कह रहा है बैक बताओ कि बैक पे क्या प्रेजेंट है, जो भी उस समय प्रेजेंट होगा वो प्रिंट कर दो। फिर वो कह रहा है रिवर्स कर दो एरे 1 से 6 तक, 1 से 6 तक वेक्टर रिवर्स कर दो। फिर वो बोल रहा है फ्रंट एलिमेंट बताओ क्या रखा है, तो अभी 3 रखा होगा। वो बोल रहा है कि पुश बैक 1 करो, मतलब 1 एक और बड़ा वेक्टर में ऐड कर दो पीछे। और वो कह रहा है प्रिंट 4 कि फोर्थ पर क्या रखा है, 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट पे क्या रखा है वो प्रिंट कर दो 9। वो एरे चेंज हो गया होगा ना इससे, क्योंकि रिवर्स किया है हमने, सॉर्ट किया है, तो ये 9 आ गया होगा फोर्थ पे। अभी तो नहीं है पर आ गया होगा। तो मैं तुमको इसका डायरेक्ट कोड ही दिखा देता हूँ, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, ये दिख रहा है या जूम करो? दिख रहा है। तो हमने क्या किया, पहले इंटीजर लिया n और q, फिर उसको इनपुट ले लिया नंबर ऑफ इंटीजर और q क्वेरीज है। अब वेक्टर में इनपुट ले लिया, वेक्टर को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, वेक्टर, फिर उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, उसको नेम, और ब्रैकेट में n मतलब कितने साइज का है। तो इसको इनिशियलाइज बता देता हूँ कैसे करते हैं। वेक्टर लिखते हैं, इंट लिखते हैं उसका नाम, और ब्रैकेट में n, मतलब ये n साइज का हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। पर अगर सिर्फ ये लिखा वेक्टर इंट v, मतलब ये एरे एम्प्टी है, इसका कोई साइज नहीं है, तो तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते अभी। अगर आप v0 प्रिंट करोगे तो वो एरर देगा, क्योंकि अभी उसका कुछ इंडेक्स ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई साइज ही नहीं है, एरे खाली है अभी। सी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, बल्कि ये इंडेंटेशन एरर देगा, लेकिन मेरे कंपाइलर के फ्लैग सेट नहीं है इसलिए नहीं दे रहा। पर अगर तुम v डॉट पुश बैक करोगे, v डॉट पुश बैक 2, और अगर सी आउट अब पहला वाला v0 प्रिंट करोगे, अब वो 2 देगा, क्योंकि ये बिल्कुल एम्प्टी था अभी। पर अब 2 एलिमेंट इसमें पुश बैक कर दिया, मतलब 2 प्रेजेंट है, तो अब वो सी आउट v0 करोगे तो 2 देगा। ये समझ आया? खाली में तुम कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर वेक्टर v डॉट n अगर तुमने ये कर दिया, अब मतलब इसका मतलब क्या है कि अब वेक्टर हमारा बन गया है, जिसमें कुछ खाली, अभी खाली है वो, लाइक कुछ कुछ एलिमेंट n साइज का बन गया है, पर उनकी जगह पे अभी कुछ रखा नहीं है, खाली है। खाली लाइक मोस्टली 0, शायद ये 0 ही होता है प्रेजेंट अगर n, अच्छा रुको, इंट n सी इन n करोगे और n को 3 देते हैं, 3 साइज का दिया और 3 साइज का एरे बनाया। तो देखो अभी हम प्रिंट करेंगे 0 पे 0 मिलेगा, लाइक खाली है तो 0 प्रेजेंट रखता है वो। ओके तो अगर हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज नहीं किया साइज, तो फिर उसको एक्सेस इंडिविजुअली नहीं कर सकते तुम। हाँ ओके, तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते जैसे आपने किया था अभी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 करके इंडिविजुअली वैल्यूज नहीं डाल सकते? नहीं, अगर ये खाली है ना, मतलब ये एम्प्टी है। पर अगर इसमें तुमने n दे दिया, मतलब ये अब n साइज का है और सब पे 0 0 0 रखा है। देखो अगर ये 3 दिया हमने तो v कैसा दिख रहा है,
तीनों 0 0 0, राइट। ओके। और अगर ये n नहीं लिखा मतलब ये वेक्टर बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं। अगर देखो इसको डिबग करोगे v, ये खाली है, देखा कुछ है ही नहीं, कुछ पड़ा ही नहीं है, तो इंडेक्सिंग ही कहाँ है। ओके। भैया इसमें आपने जो डिबग यूज किया है इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है? ये कुछ नहीं है, एक मैं debug.h फाइल बना रखा हूँ लाइक अच्छा, अलग से, ये खुद से मैं सेट किया क्या हूँ। मतलब फाइल शेयर कर सकते हैं भैया? हाँ मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक। तो ये समझ आया कि वेक्टर को कैसे, अगर ये तुमने n नहीं लिखा है तो खाली रहता, कुछ इनिशियलाइज नहीं कर सकते तुम, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, तो v ऑफ n देना। और फिर हम इसको एरे की तरह यूज कर सकते हैं, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस c इन v ऑफ i। जैसे एरे में इनपुट लेते हैं वैसे इनपुट ले लेंगे, पर ये v ऑफ i तभी ले पाएंगे इनपुट जब ऐसे इनिशियलाइज कराओ, या अगर तुमने खाली इनिशियलाइज कराओ और इनपुट लेना हो तब भी, तो कैसे इनपुट लोगे, तो तुम int x में इनपुट लोगे, c इन x करोगे और v डॉट पुश बैक, फिर पुश बैक का यूज करना पड़ेगा तुमको, v डॉट पुश बैक x, फिर c इन vi नहीं कर सकते। लाइक अगर 1 4 5 तुमने इनपुट लिया, और अब देखो, अब और डिबग कर लेता हूँ v को। देखो अब 1 4 5 हमने पुश बैक किया है, उसमें हम सीन vi नहीं कर सकते सीधा, क्योंकि तुम्हारा एलिमेंट्स का अभी कुछ, जब वो डिफाइन ही नहीं है कितने साइज का है, तो उसका इंडेक्सिंग हुआ ही नहीं है, तो सीन vi करोगे तो वो होगा ही नहीं। ओके। देखो कुछ नहीं आया ना, हमने 1 4 5 दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, लिया ही नहीं वो, क्योंकि इंडेक्सिंग हुई नहीं है। पर जब साइज डिफाइन कर दोगे n तो इंडेक्सिंग हो गई, तो अब वो ले लेगा C 1 4 5। ये क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ हाँ, और ये वाला मैं क्वेश्चन बता रहा था। तो अब क्वेरीज हैं और हमने को स्ट्रिंग में इनपुट लेना है, तो वो पूछ रहा है अगर s हमारी पॉप बैक के इक्वल है तो हम वेक्टर में से क्या कर देंगे, पॉप बैक। अगर क्वेरी में हमको s स्ट्रिंग फ्रंट मिली है तो हम सी आउट कर देंगे v डॉट फ्रंट, ये क्या देगा, पहला जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और अगर हमारी else स्ट्रिंग बैक मिली हुई है क्वेरी में तो हम क्या करेंगे, v डॉट बैक को प्रिंट कर देंगे। पर अगर हमारी स्ट्रिंग बोल रहा है सॉर्ट, तो सॉर्ट के बाद वो दो इंटीजर देगा l और r, तो हम इनपुट ले लेंगे l और r। तो और ये सॉर्ट करेंगे कहां से कहां तक, v डॉट बिगिन प्लस l माइनस 1। मैं यहाँ l माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि वो l और r 1 बेस्ड इंडेक्स दे रहा है, पर हमारे तो ये 0 बेस्ड इंडेक्स होता है ना, तो हम l को क्या कर देंगे -1। पर r को -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको तो r वहां तक लेना पड़ता ना, एक एक्स्ट्रा जो भी मैं बताया था, राइट। हाँ तो r को r ही रहने देंगे, क्योंकि वो पहले से ही 1 बेस्ड है, मतलब वो एक आगे पहले से ही प्रेजेंट है। ऐसे ही सेम रिवर्स में करेंगे, p q लेंगे, ऐसे v डॉट बिगिन प्लस p -1 और q तक। लाइक ये वाला मैं 1 बेस्ड वाला बता देता हूँ। भैया ये तो पता चल गया कि r को r-1 नहीं लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हाँ। l-1 क्यों ले रहे हैं इसमें? हाँ सी, देखो l हमारा 1 बेस्ड दिया है 1 2 3 4, पर हमारा एरे कैसे होता है 0 1 2 3। तो अगर तुमको l दिया है कि 1 से 3 तक रिवर्स करो या सॉर्ट करो, तो हम l क्या लेंगे, ये v डॉट बिगिन प्लस l -1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 1 है लेकिन ये तो 0 बेस्ड है। हाँ हाँ भैया, ओके ओके। और 1 से 3 तक करना है तो r तो 3 लेना पड़ेगा, तभी ना ये तीनों एलिमेंट होंगे। तो r हमने सेम रखा, और r हमने सेम रखा, वो 3 दिया था तो हमारा r यहाँ 3 है, और l को -1 किया, क्योंकि हमको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में 0 बेस्ड में काम करना है, लेकिन वो 1 बेस्ड दिया था इनपुट। समझ आया? सर फिर से बता ओके रिपीट कर दो एक बार, रिपीट। ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है 2 5 7 8, और वो बोला है कि ये 1 से 3 तक तुम लोग सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट में क्या चाहिए हमको,
यहाँ पे क्या चाहिए 1, लेकिन हमारा इंडेक्स ये 1 बोला है, लेकिन हमारा इंडेक्स तो ओरिजिनल में यहाँ 0 है ना। तो हम क्या करेंगे, वी डॉट बिगिन प्लस L माइनस 1 करेंगे ना। मान लो अगर वो बोलता है कि 2 से 3 तक सॉर्ट कर दो, तो हमारा इंडेक्स क्या है 2 पे 1 है ना, तो हम क्या करते हैं वी डॉट बिगिन प्लस 2 माइनस 1, मतलब वी डॉट बिगिन प्लस 1 से चालू करते, समझे। और 3 वो बोला है कि 3 है, उसके हिसाब से ये वाला एलिमेंट, पर हम तो R जो है एक एक्स्ट्रा ही लेते हैं ना, वो जहां तक बोला हम उससे एक आगे तक जाते हैं। तो R हमारा ये जो 3 है वो यहाँ 3 भी मैच कर रहा है, तो R में चेंज नहीं किया, वी डॉट बिगिन प्लस R तक ही रहने दिया। अब समझ आया? नहीं समझ हाँ। आया तो दोबारा बता सकता हूँ मैं, बता दो। हाँ समझ गया। समझ आया ना, इंडेक्सिंग वो 1 बेट में दिया है, पर हम लोग 0 में काम कर रहे हैं। लाइक हमारा ओरिजिनल इंडेक्सिंग है ऐसे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पर वो पूछ रहा है हमसे ऐसे 1 2 3 4 5। तो अगर वो R हमको 3 दिया है तो वो ये दिया है, पर हमको तो वैसे भी यही लेना था, ये इससे आगे वाला लेना था, और ये हमारा R ही है, देखो ये 3 ही है, पर हमको बिगिन तो 1 माइनस लेना था, क्योंकि बिगिन तो हमको इंक्लूड करना रहता है। तो अगर वो ये बोला है कि बिगिन यहाँ से करो, तो हम -1 से चालू करेंगे ना उसके, क्योंकि हमको ये इंक्लूड करना है। लाइक वो 2 बोला, पर हमारा 2 पे इंडेक्स क्या है 1, तो ये क्या है वी डॉट बिगिन प्लस 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अगर वो 2 दिया तो वी डॉट बिगिन प्लस L माइनस 1 लेंगे ना। अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है, तो ये 0 बेट 1 बेट का, और वो प्रिंट बोला है, तो हम जिस इंडेक्स पे बोला है x, वो 1 बेट दिया है, तो हम v x माइनस 1 लेंगे, वो इंडेक्स में भी x माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि वो 1 बेट दिया है। मान लो वो बोला है कि 3 पे क्या रखा है वो बताओ, तो हम v ऑफ 2 बताएंगे ना, v ऑफ 2 क्या है, तो इसलिए v ऑफ x माइनस 1। और वो बोला है पुश बैक है, तो हम इनपुट लेंगे जो पुश बैक लेना है, नंबर एंड नम सी नम, और v में पुश बैक कर देंगे नम, तो v का साइज भी बढ़ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो ब्रेक कर देंगे। ये समझ आया कोड? इस कोड में कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है, नहीं है। वेक्टर की क्लियर हो गई ना, पॉप बैक क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, बैक क्या होता है, सॉर्ट कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, पुश बैक कैसे करते हैं। हाँ भैया। हाँ हाँ। ठीक है, तो वेक्टर के हम लोगों ने मोस्टली फंक्शंस देख लिए। अभी नेक्स्ट क्या आता, और ऐसे टाइम तो काफी हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे का जो STL है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, ओजेस देखे, कौन कौन से ओजे हैं, कैसे काम करता है, C++ का बेसिक्स कवर किए, और STL में एरे और वेक्टर कवर किया, राइट। हाँ भैया, कॉन्टेस्ट कौन सा देना चाहिए अभी शुरू शुरू में? बिगिनर हो तुम? हाँ। बिगिनर हो तो कोड शेफ दो और एड कोडर दो। अच्छा, एड कोडर में ये होता है, मतलब कोड शेप में तो बहुत सारा भाग है, कौन सा भाग में? कोड शेफ में स्टार्टर्स होते हैं ना। अच्छा, वहां पे भी स्टार्टर्स होते हैं, अच्छा। हाँ, और एड कोडर में भी बिगिनर होते हैं। अच्छा, वो दोनों, ठीक है। हाँ, अभी शुरू में कोड फोर्सेस मत देना, ओके थोड़े ओके दिन ये दो, फिर कोड फोर्सेस पे आ जाना। ओके तो ठीक तुम है। लोगों को तो इनका जो ये आज दोनों ये हाँ, दोनों ये दोनों कॉन्टेस्ट किस टाइम पे होते हैं जनरली? मैं शुरू में बताया तो था, ये वेडनेसडे को होता है 8 अच्छा बजे, और 8 ये बजे। सैटरडे को होता है 5:30। ओके। और हाँ, और तुमको डेली टास्क दिए जाएंगे, ये जो आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड, वो डेली सॉल्व करना, और सॉल्व नहीं होगे, डाउट आएगा तो सर्वर पे पूछ लेना। ओके, और ये नोट्स दे देना जरा। कौन सा नोट्स? ये जो आपने लिखा, मतलब जहां से पढ़ा रहे थे, पीपीटी जितना तक हुआ। हाँ हाँ, वो शेयर कर देंगे, ऐसे इसमें कुछ खास है नहीं, बस प्रॉब्लम्स ही। तो आगे जो आज हमने एरे वेक्टर तक किया है, अब जब नेक्स्ट क्लास जो भी लेगा, या तो मैं लूंगा या जो भी कोई और सीनियर लेगा, तो वो यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो हम लोग आगे क्या देखेंगे, स्टैक्स देखेंगे,
क्यू देखेंगे, डी क्यू देखेंगे, सेट्स देखेंगे, प्रायोरिटी क्यू देखेंगे, दोनों मैक्स और मिन, मैप्स देखेंगे और बाइनरी सर्च देखेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे, सॉर्ट का तो मैं बता दिया हूँ, और परमुटेशन देखेंगे। तो ये आई होप कि ये 1 या 2 क्लास में और जो वेडनेसडे को होगी ना तुम्हारी नेक्स्ट क्लास, हाँ, तो वेडनेसडे को ये आगे वेक्टर से चालू कर देंगे। आज भैया ये लाइक वाले प्रॉब्लम्स की लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, ये स्लाइड से शेयर कर देंगे तो उसमें सब आप लोग देख लेना। वेडनेसडे क्या इसका ही क्लास होगा या फिर नया कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मतलब क्या होगा वेडनेसडे को? वेडनेसडे को शायद मतलब थोड़ा बहुत ये भी करा देंगे, और ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो रही है, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, उसके रिलेटेड हर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ठीक सॉल्व करके दिखाएंगे तो वो एक तरह से बहुत ही कवर हो जाएगा। ठीक है। But ये जैसे जो STL में आपने बताया कि ये पुश बैक, पॉप बैक, और अभी जो बताएंगे DQ स्टैक वगैरह, उसमें जो जो फंक्शन यूज होंगे वो सफिशिएंट किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो हार्ड हो मीडियम, या फिर STL को और डीप में स्टडी करना पड़ सकता है? करना पड़ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा जितना बताएंगे वो सब, लाइक तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फिर खुद भी तो एक्सप्लोर करोगे ना। लाइक अब ये तो हो नहीं सकता कि पूरा STL हम लोग 1 महीना STL ही पढ़ाते रह जाएं। हम लोग वो बताएंगे जो बिगनर के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे जैसे तुम प्रॉब्लम लगाओगे, कुछ प्रोकोडर का कोड देखोगे, तो धीरे धीरे सीखोगे कैसे और चीज कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। पर हम लोग वो सारी बेसिक कमांड बताएंगे जो जरूरी है। इनसे अलावा बहुत है STL, लाइक STL कोई खत्म नहीं कर सकता, लाइक बहुत फंक्शंस हैं, पर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट और जो बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बताएंगे। और जो आगे आगे हार्ड या कुछ जो और एल्गोरिदम या STL में प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे तुम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो खुद ही सीख जाओगे। पर जो लाइक 90% जो है ना, 90% हम लोग कवर कर देंगे जो यूज होता है डेली, लाइक। पर कुछ जो भी थोड़े बहुत अलग होंगे, लाइक कुछ कुछ होता है बहुत स्पेसिफिक काम के लिए, कुछ कुछ एल्गोरिदम होता है लाइक रोटेट, वो सब तुम लोग खुद धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करोगे तो सीख जाओगे, एडिटोरियल पढ़ के या कोड दूसरों का पढ़ पढ़ के ना, तो तुमको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक। क्योंकि पूरा STL कवर करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस है ना, पर जो इम्पोर्टेंट है वही कवर किए जा सकते हैं। हाँ भैया, जो हर बार यूज होते हैं, जो हाँ, लाइक 95% ऑफ द टाइम जो बार बार यूज होते हैं वो कवर हो जाएंगे। और किसी को कोई डाउट अभी तक जो आज मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। ये भैया ये कि क्लास की नेक्स्ट शेड्यूलिंग डेट्स क्या है? जैसे अभी वेडनेसडे है, अब कब है उसके बाद? उसके बाद शायद फ्राइडे है, क्या पता, लाइक मेरे को श्योर नहीं है। तुम लोगों को सैटरडे है Saturday मैसेज है किया ना? है फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे आई गेस। हाँ, हाँ, तो वेडनेसडे और सैटरडे 11 PM। वेडनेसडे को भी शायद नाइट को होगी क्लास, और हाँ 11 PM बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसमें आगे से यहाँ जितना आज मैं पढ़ाया हूँ उससे आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हैं। ओके भाई, बाय बाय।